ہیراپور کی یہ مسجد شہر گلبرگہ سے صرف 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ علاقہ زراعت اور زرخیزی کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ اس گاؤں کا نام ہے ہیراپور۔ ہیراپور کی یہ مسجد جامع مسجد ہے۔ یہ اس علاقے کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، یہاں اللہ کی عظمت اور بزرگی بیان کی جائے۔ سورہ توبہ میں کہا گیا، وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا وہ کسی سے خوف اور تقویٰ نہیں کرتے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کا گھر وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو لوگ اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر سورہ نور میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بندے اللہ کے ان گھروں میں ہوتے ہیں جس کے بلند کرنے کا انہیں حکم دیا گیا۔ اپنی تاریخی حیثیت کے اعتبار سے یہ انتہائی اہم ہے، اس لیے اسے محکمہ آثار قدیمہ نے اپنی نگرانی میں لے رکھا ہے۔ البتہ اس کے انتظامات مقامی لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہاں ایک کمیٹی موجود ہے جو نہ صرف نماز اور عبادات کے انتظامات کی نگراں ہے بلکہ اس کے اندر چل رہی تعلیم گاہ کی بھی نگرانی کرتی ہے۔ ویسے یہ مسجد شہر گلبرگہ کی پرانی مسجدوں میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد ہیراپور کی شاہراہ پر واقع ہے اور ہر آنے جانے والے کی نظر اس طرف ضرور پڑتی ہے۔ باہر سے اتنی لمبی اور اونچی دیوار ہے کہ یہ محل معلوم پڑتی ہے۔ دیوار سے گزرتے ہوئے استقبالیہ گیٹ ہے جو کافی وسیع ہے۔ اس کے اندر لوگ گرمی کی دھوپ سے بچنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اس میں اوپر جانے کے لیے آج بھی راستے موجود ہیں اور بہتر حالت میں ہیں۔ اس میں گچ کے پلاسٹر اور اس وقت کے رنگ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ استقبالیہ گیٹ سے مسجد اور مسجد سے استقبالیہ گیٹ کا نظارہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسجد احاطے کے اعتبار سے تو نہایت بڑی ہے، البتہ اس کا پریئر ہال مختصر ہے۔ اس میں بمشکل 300 افراد باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ احاطہ اور صحن میں ہزاروں لوگ بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد 3 کمانوں والی ہے۔ بیچ کی کمان دائیں بائیں کمانوں سے بڑی ہے، جیسا کہ شاہی مساجد میں عموماً دیکھنے کو ملتا تھا۔ اس طرح ان کمانوں پر نقش و نگار کا بھی خوب اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں پرانی عمارت کے ساتھ نئی عمارت کی پیوند کاری کی گئی ہے، جو کہ مقامی لوگوں کی ضروریات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ البتہ عمارت کو اس سے نقصان تو نہیں پہنچا ہے، لیکن اس کے ظاہری حسن میں ایک دھبا ضرور لگ گیا ہے۔ اس مسجد کے اصل رنگ کو دیکھنے کے لیے آپ مسجد کے پچھلے حصے کو دیکھیں، جس میں پیچھے بھی اگلے حصے کی ہی طرح 3 کمانیں صاف طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں، اور بڑی تینوں کمانوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی کئی کمانیں اور سنگ تراشی کے نمونے ہیں جو دیگر شاہی مساجد کی شان ہے۔ مسجد کے باہری حصے میں اذان کے لیے بھی ایک اونچی جگہ بنائی گئی ہے،
जिस पर चढ़कर मुअज्जिन लोगों को बुलाता है। मस्जिद का अहाता और उसकी दीवार इंतहाई आलीशान है। उसके बाहरी हिस्से को ही देखकर उसके शाहाना तर्ज तामीर का पता चलता है। गेट पर भी कमानें बनी हुई हैं और उसके चारों तरफ भी कमानों की एक कतार मिलती है। इस गेट के बीच की कमान अमूमन दीगर शाही तर्ज तामीर के मुताबिक बड़ी है और बकिया कमानें छोटी हैं। कमानों के ऊपर कमान नुमा ही बालकोनियां हैं जिनसे हवा और रोशनी खूब आती है। इसके नक्शो निगार भी इंतहाई दीदा ज़ेब है। इसकी लंबी दीवार और इसके बाहर की कमानों में कमरे बने हुए हैं जो पहले मुसाफिरों और तालीम हासिल करने वाले तलबा के काम आते थे। एक ज़माना था जिस ज़माने में मसाजिदें इबादत गाह भी थी, तरबियत गाह भी थी और ये इल्म के लिए मराकिज़ भी थे। फिर तमाम मिल्लत और समाज का ये महवर मरकज़ थे। यहाँ पर रहने वाले, यहाँ आने वाले, इनमें हमदर्दी, मोहब्बत, गमगुसारी ऐसी होती कि हर आने वाला दूसरे से मोहब्बत उल्फत करता। ये मुसाफिरों के लिए राहत कदा भी थी और समाज में कम पढ़े लिखे, बेपढ़े लिखे लोगों के लिए तालीम बालिगान का मरकज़ भी थी। और मस्जिद अदल व इंसाफ के क़ियाम का ज़रिया भी थी। और दौर अव्वल में मस्जिद को बतौर स्टोर के भी इस्तेमाल किया जाता और यहाँ अमन व इंसाफ के फ़ैसले होते, लिहाजा ये अदालत भी थी। और यहाँ लोग बाहर से जब आते तो ये मेहमान खाना भी थी। दौर अव्वल में इबादत के लिए सभी लोग आते, मर्द हो, औरतें हों, बच्चे हों, बड़े हों। इस मस्जिद का प्रेयर हॉल मुख्तसर सा है और इसमें कोई खंबा नहीं है। ये पूरी की पूरी अपने चौतरफा दीवारों पर खड़ी है। इसके बावजूद इसका गुंबद आज तक अपनी बेहतर हालत में मौजूद है। इसका तर्ज तामीर दक्कनी, बहमनी और हिंदुस्तानी तीनों का बेहतरीन संगम है। अलबत्ता एयर रिंग का इस्तेमाल नक्शो निगार में कई जगहों पर देखने को मिलता है। इसका फन तामीर भी किसी शाही मस्जिद से कम नहीं और बाज मकामात पर तो ये उनसे भी आगे है। मसलन उसके ताक का तर्ज तामीर और उसके ऊपर तक नक्शो निगार का होना इस मस्जिद की खुसूसियात में से है। नक्शो निगार में एयर रिंग ताक के अलावा उसके अंदरूनी कमानों के ऊपरी हिस्से के नक्शो निगार में खासी जिद्दत तराजी और फनकारी का नायाब नमूना देखने को मिलता है जो इस मस्जिद को दूसरी शाही मसाजिद से मुमताज करता है। अलबत्ता बाज़ नुकूश हवादिसे ज़माना ने मध्यम कर दिए हैं। मस्जिद का रंग वही है जो बीजापुर और गुलबर्गा की दीगर मसाजिद का है, जिनमें काले पत्थर लगाए गए हैं। मस्जिद के तर्ज तामीर में हिंदू तर्ज तामीर की झलकियां तो साफ तौर पर मौजूद हैं ही, यहाँ तक कि जानदारों की नुकूश भी है। मसलन जगह जगह पर हाथी का चेहरा और उसके सूंड का इस्तेमाल, जो कि गुलबर्गा के कैची महल मस्जिद में भी मौजूद है।
आदिल शाही दौर की तर्ज तामीर की तमाम खुसूसियात इसमें पाई जाती हैं। खुसूसन इसका मेहराब नक्शो निगार के एतबार से और उसकी प्लास्टर कटिंग के एतबार से लासानी है। अब ये तेज रंगों के मौजूदा इस्तेमाल से काफी दबकर रह गया है, जो आंखों को चुभता है। मेहराब के अंदर खत्ताती का भी एहतमाम किया गया है और उसमें अल्लाह, मोहम्मद और आयतल कुर्सी साफ देखने को मिलते हैं। मेहराब के ठीक बाईं और दाईं जानिब 2 कमाने हैं, जिन पर नक्शो निगार और कट प्लास्टर का काम भी इंतहाई सलीके से किया गया है। मस्जिद, मेहराब व मिंबर जहाँ से लोग खुदा रसीदगी, तक़वे, परहेज़गारी की तालीम देते थे, आज वो तालीम फिर एक मरतबा होने की ज़रूरत है। यही वजह है कि लोगों ने कहा, आज मस्जिद, मेहराब व मिंबर तरस रहे हैं उन सदाओं के लिए जो सदाएं अल्लाह की अज़मत और बुज़ुर्गी के लिए इस्तेमाल की जाती। मेहराब के ही बाईं जानिब से जीना बना हुआ है, जो अभी भी बेहतर हालत में है। इसके जरिए प्रेयर हॉल की छत पर जा सकते हैं। प्रेयर हॉल के कोनों पर जो कमाने हैं, उनमें कट प्लास्टर का काम अपने आप में इंतहाई नुमाया है, जो अपनी लंबी उम्र के बावजूद इंतहाई शानदार है। नक्शो निगार के तलबा के लिए ये मस्जिद इंतहाई अहमियत की हामिल है। गुंबद बड़ा है, अलबत्ता सफेद चूने ने इसके पुराने रंग को खत्म कर दिया है। ये खासा बड़ा है। नक्शो निगार के एतबार से तो ये मुमताज है ही, इसके दोनों तरफ एक एक मीनार भी है, जिस पर नक्शो निगार भी किसी शाही मस्जिद से कम नहीं। इनके अलावा गुंबद पर नक्शो निगार में एक खासी बात देखने को मिलती है कि इसमें लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ है, जो किसी गुंबद के बाहरी हिस्से में देखने को नहीं मिलता। बहरहाल ये मस्जिद आबाद होने की वजह से अपनी बोसीदगी और कदामत के बावजूद महफूज है। अलबत्ता एहतियात और तवज्जो की मजीद जरूरत है। इसके चारों कोनों पर गुंबद के साथ साथ मीनारें भी मौजूद हैं और हर 2 मीनार के बीच में 2 छोटे छोटे मीनार इंतहाई मौजू और मुनासिब दिखाई पड़ते हैं। इस मस्जिद का प्रेयर हॉल छोटा जरूर है, अलबत्ता इसके नक्शो निगार और तर्ज तामीर के एतबार से ये किसी भी शाही मस्जिद से कम नहीं, बल्कि अपने नक्शो निगार के एतबार से ये गुलबर्गा की अजीम मसाजिद में से एक है।